Welcome to Sharadvi More English School online lecture. Good morning, student. Today we have learned about the Down syndrome. In this Down syndrome, we have seen that the 21st chromosome become trisomy. Means in the 21st chromosome pair, one more chromosome is there. So what happens? So the life of that child is about 16 to 20 years, and there is a retardation in the growth, and there is a mental retardations also, and the lifespan becomes short when any child suffer from the Down syndrome. Now next type is the Turner syndrome. It is also called as the monosomy of the X chromosome. Turner syndrome is also known as the monosomy of the X chromosome. As with the autosomes, we know that yes, autosomes are 44. Abnormality in the sex chromosomes also cause some disorders. In the males, there are X and Y type of the sex chromosome, whereas in the female there is a X and X chromosomes for the sex. Turner syndromes or 44 plus X arise due to either inheritance of only X chromosome from parent or due to inactivation of the gender related part of the X chromosome. Instead of the normal 44 plus XX conditions, women suffering from the Turner syndrome shows the 44 plus X condition. Such women are sterile, that is unable to have children due to the improper growth of the reproductive organ. So this disease this disease is generally caused in the women's. Okay, ये females में ये generally ये problem create होती है because there is a one less X sex chromosome, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जो XX sex chromosomes है वो एक कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो क्या बचता है उनके अंदर 44 plus X chromosome remain in it, and because of that woman become sterile. क्या हो जाती है, स्टेराइल मीन्स वो बच्चे को बर्थ नहीं दे सकती, बिकॉज जो इसकी कमी की वजह से, जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी कमी से जो उसके ग्रोथ ऑर्गेन्स होते, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन डेवलप होते नहीं है. नाउ नेक्स्ट टाइप इज द क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. क्लीन फिल्टर सिंड्रोम. So in Klinefelter syndrome there is 44 plus XXY chromosome. तो here one X chromosome become extra in the males. ये किसके अंदर ये abnormalities होती है, मैन के अंदर. और टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर होती है, ये फीमेल के अंदर होती है. और जो हमने डाउन सिंड्रोम देखा, ये डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल किसी में भी हो सकता है. ओके, बिकॉज ये डाउन सिंड्रोम रिलेटेड टू द Down syndrome related to becoming one extra X chromosome, one extra autosomes. But Turner syndrome related to the sex chromosome, and here it become is one single X chromosome in female. And in Klinefelter syndrome, we see that yes, the one X chromosome become extra in the males. This disorder arises in the man due to abnormality in the sex chromosome. In this disorder, men have one extra X chromosome, hence their chromosomal conditions become 44 plus X plus X plus Y. So here also in Klinefelter syndrome, the chromosomes become total 47 instead of the 46. As in Down syndrome, it also become 47. But in the Klinefelter, yes, the X chromosome X become extra in the male, and in the Down syndrome, yes, it become one extra autosome chromosome in the 21st pair in the male or in the female. Okay, ये दोनों में हो सकता है. Hence their chromosomal condition become 44 plus X plus X plus XXY. Such men are sexually sterile because their reproductive organs are not well developed. तो ये भी मेल्स जो होते वो स्टेराइल होते, वो भी यंग वंस को बर्थ देने के कैपेबल नहीं होते. Now next part, disease occurring due to mutation in the single gene or monogenic disorder. Now yes, these three, Down syndrome, Turner
syndrome and Klinefelter. These are related to the number of chromosomes. Now, the disease which occur due to mutation in the genes, ये जीन्स के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स है. Disorder of or disease occurring due to mutation in any single gene into a defective one are called monogenic disorder. Approximately 4,000 different disorder of this type are now known. अभी इस टाइम लगभग 4,000 डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर जो जीन्स की वजह से होता है, जीन के अंदर जो जीन्स होता है उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से होता है, वो पता है इस हमारे डॉक्टर्स को. ड्यू टू एबनॉर्मल जीन their products are neither produced in insufficient quantity or not at all. अब जो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से जो जीन्स किसी प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो या तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में फॉर्म होता है या तो बिल्कुल होता ही नहीं है. इट कॉजेज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म दैट में लीड टू डेथ at tender age. Okay, yeah, this abnormal metabolism is brings about the death at the tender age, means very early age. Example of such disorders are Hutchinson's disease, Tay-Sachs disease, galactosemia, phenylketonuria, sickle cell anemia, cystic fibrosis, albinism, hemophilia, night blindness, etc. So these are the diseases which are related to the mutation in the single gene. Now albinism, okay, so this is the genetic disorders. Our eyes, skin and hair have the color due to the brown pigment melanin. Okay, our skin is black in color because of the pigment melanin. Melanin is present in the skin. In this disease, means in albinism, the body cannot produce melanin. So what happens? The melanin is not produced in our body. The skin becomes pale, hair and white. जो उसके स्किन्स है वो क्या हो जाते हैं? पेल, हेयर्स आर वाइट, और जो बाल होते हैं वो वाइट हो जाते हैं. एंड आईज आर यूजली पिंक, और आंखें क्या हो जाती पिंक. ड्यू टू absence of the melanin, due to absence of melanin pigment in retina and sclera. अब ये जो है पिंक कलर हो जाता है आँखों का बिकॉज ऑफ absence ऑफ द मेलानिन पिगमेंट इन रेटिना एंड स्क्लेरा. स्क्लेरा और रेटिना में मेलानिन एब्सेंट होने की वजह से हमारी आंखें जो आइज होती है वो पिंक कलर की दिखाई देती है. नाउ सेकेंड, सिकल सेल एनीमिया. Even minor changes in molecular structure of protein and DNA may lead to disorder or disease or disorder. If there is a very minor changes in the molecular structure of protein or DNA, okay, deoxyribonucleic acid, so this brings about disease or disorder. Normal hemoglobin has glutamic acid. Normal hemoglobin have glutamic acid as the sixth amino acid in its molecular structure. तो जो ब्लड है, ब्लड में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ में ग्लूटामिक एसिड होता है जो 6 अमीनो एसिड्स होता है. इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, अगर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, द शेप स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल चेंजेस. तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो शेप और स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का होता है वो चेंज हो जाता है. किसकी वजह से? अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या प्रेजेंट हो जाए, वैलिन. और ये ग्लूटामिक एसिड किसके साथ अटैच रहता है? ये हीमोग्लोबिन के साथ प्रेजेंट रहता है. ड्यू टू दिस द इरेथ्रोसाइट और रेड ब्लड कार्पोसेल्स, that is RBCs, which are normally biconcave, become the sickle shape. Okay, because of absence of the glutamic acid, the structure and shape of the hemoglobin molecule changes, and erythrocyte or red blood cells, corpuscles. Okay, erythrocyte is the nothing but the red blood cells, corpuscles, which are normally biconcave. So their real shapes are the biconcave, but they become the sickle shape.
सिकल के शेप के हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द सिकल सेल एनीमिया। द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन सच इंडिविजुअल इज वेरी लो। तो इफ एनी पर्सन सफरिंग फ्रॉम द sickle cell anemia, then the oxygen carrying capacity of the hemoglobin decreases. In this condition, clumping and therefore destruction of erythrocyte occur most often. When these conditions happens, then erythrocytes destroy. As a result, vessels are obstructed, blood vessels are obstructed, and circulatory system, brain, lung, kidneys, etc. damaged. अब इसकी वजह से, इस कंडीशन की वजह से, सिकल सेल की वजह से जो ब्लड का फ्लो होगा वो क्या होता है, स्टॉप्ड हो जाता, ऑब्स्टेकल्स आर क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, एंड बिकॉज ऑफ absence of the oxygen, brain, lungs, kidney do not get the sufficient amount of the oxygen, and in absence of oxygen the sickle cell, because of this, the damage of the brain, lung, kidney occurs. It occurs due to changes in the genes during conceptions. It occurs due to change in the gene during conception. If the father and mother are both affected by sickle cell anemia, or if they are carrier of this disorder, their offsprings are likely to suffer from this disease. अगर मदर और फादर अगर दोनों सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है और अगर किसी एक को ये डिसऑर्डर है तो उनके बच्चे भी इस बीमारी से सफ़र कर सकते हैं। हैंस मैरिज बिटवीन द पर्सन हु आर कैरियर और सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया शुड बी अवॉइडेड। तो ऐसे पर्सन जिनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उनको मैरी को अवॉइड करना चाहिए, उनको शादी नहीं करना चाहिए। There are the two type of the person affected by sickle anemia carrier AS and sufferer from the sickle cell anemia SS. The symptom of sickle cell anemia, swelling of hand and legs। क्या होता है इसमें, हैंड और लेग्स उसके स्वेल हो जाते, क्या है ये, हैंड और लेग्स क्या हो जाते, स्वेल हो जाते, फूक जाते। पेन इन जॉइंट, और जो जॉइंट होते हड्डियों के उसमें पेन होती है। सीवियर जनरल बॉडी एक, और जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती, एक होती, एक मतलब पेन, दर्द। फ्रिक्वेंट कोल्ड्स एंड द कफ, और लगातार कफिंग एंड कोल्ड होती। कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर, एंड लगातार क्या रहता है उनको, हल्का फीवर रहता है, हल्का बुखार रहता है। एग्जॉशन, पेल फेस, और उनको जो फेस होती है वो क्या हो जाती है, लाइट इन कलर। लो हीमोग्लोबिन कंटेंट, और होमोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। In Maharashtra, there are more than 2.5 lakhs people suffering from the sickle cell anemia, and about 21 districts including 11 districts from the Vidarbha are affected by this disorder। अब देखो महाराष्ट्र में लगभग 2.5 लाख लोग इस सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है, और 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 डिस्ट्रिक्ट विदर्भ साइड से, विदर्भ के क्षेत्र में जो आता है वो इससे अफेक्टेड है। Okay, now see the structure, the sickle cell. Now see the normal structure of the yes erythrocytes in the blood vessels। ये जो blood vessels दिखाई दे रहा है आपको, ये blood vessels में जो erythrocyte का जो शेप है, देखो ये नॉर्मल शेप्स है, और ये किस तरह के होते, बाइकॉनकेव होते हैं। कैसे होते, बाइकॉनकेव, दोनों साइड में गहरे होते हैं। और इसके बाद जब ये सेल बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, किसकी तरह से हो जाता है, ये सिकल के शेप का। सिकल मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम हसिया बोलते हैं। उस हसिये से क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप प्लांट की। वो बेंड रहता है इस तरह का, देखो ये सिकल से ऐसे एक औजार होता है जिसको हम इस्तेमाल हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं, जिसको हम सिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकल। तो व्हाट हैपेंस, दिस biconcave shape of the erythrocyte become the sickle cell, and because of becoming the sickle cell, they block the flow of the blood through the veins and arteries। जो arteries और vein है उसके अंदर क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं। उस रास्ते को क्या करते हैं, वहाँ पे
ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड सप्लाई इज गेट अफेक्टेड। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ द डैमेज ऑफ द ब्रेन, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा। इसकी वजह से ये ऑर्गन हमारे क्या है, ये डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ सिकल सेल एनीमिया ऑकर एज फॉलो। सिकल सेल एनीमिया किसको किसको होगा, देखो अभी ये नॉर्मल ये नॉर्मल पर्सन को किससे शो किया है, ए से, ठीक है। अगर ए मतलब नॉर्मल वुमेन और नॉर्मल मैन है, अगर वो क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं, तो दोनों क्या होंगे, दोनों सॉरी जो उनके यंग ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो यंग वंस होंगे, बच्चे होंगे, वो नॉर्मल होंगे। नाउ ये देखो ए और ए एस का मतलब क्या है, यहाँ पे कैरियर है, और ए एस अगर या तो मेल कैरियर है या तो फीमेल कैरियर है, तो वहाँ पे 50% चांसेस क्या है, बच्चे लोगों को सिकल सेल होने की है, और 50% नॉर्मल बच्चे भी हो सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मेल क्या है, सफ़र कर रहा है, कैरियर नहीं है, क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, और वुमेन जो है उसको भी सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, दोनों को है सिकल सेल। तो ऑल प्रोजेनी विल बी कैरियर, तो हर एक प्रोजेनी क्या होंगी, कैरियर होंगी, मतलब उनके अंदर वो प्रेजेंट रहेगा। इफ़ वन पेरेंट इज़ नॉर्मल एंड वन इज़ ए सफ़रर, अगर इसमें से हम क्या करते, एक को सफ़रर और एक को क्या बनाते, नॉर्मल बनाते, देन ओके, दोनों कैरियर नहीं है, एक सफ़रर है और एक क्या है, नॉर्मल है, एक सफ़रर है और एक क्या है, नॉर्मल। तो व्हाट विल हैपन, ऑल चिल्ड्रेन विल बी कैरियर, तो जितने भी यंग वंस बर्थ लेंगे सभी के सभी क्या होंगे, ये क्या होंगे, नॉर्मल, एंड वन इज सफरर, और एक बच्चा जो होगा वो सफरर होगा। अब देखो ए एस एंड ए एस, यहाँ पे ए एस किसके लिए लिया है, देखो ए एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एस इज़ द कैरियर, और डबल एस जो यूज़ किया वो क्या है, सफरर है, क्या है, सफ़रर। तो अगर यहाँ पे ये केस जो हमने थर्ड देखा कि अगर ये नॉर्मल मैन है और यहाँ पे सफ़रर वुमेन है, सफ़र करने वाली जो है वुमेन, मतलब उसको सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो ऑल प्रोजेनी, ऑल यंग वंस विल बी कैरियर, एंड वन पेरेंट इज़ नॉर्मल एंड वन इज़ सफ़रर। तो ये केस तभी आएगा, समझ में आई बात, मतलब वो बच्चों के अंदर सिकल सेल की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वो प्रॉब्लम वो कैरी करेंगे जो नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा। नाउ सी नेक्स्ट कंडीशन ए एस मतलब क्या है, ये भी सफ़रर है और फीमेल भी सफ़रर है, मतलब मेल और फीमेल दोनों सफ़रर है। इसके पहले वाले केस में क्या देखा, एक सफ़रर है और एक क्या है, नॉर्मल है, तो उस टाइम क्या होगा, एक ही सिर्फ क्या होगा, सफ़रर। अब यहाँ पे 25% प्रोजेनी नॉर्मल, 25% सफ़रर एंड 50% विल बी कैरियर। अगर दोनों के दोनों पेरेंट क्या है तुम्हारे, वो दोनों सफ़रर है, तो क्या होगा, उसमें से 25% जो होंगे नॉर्मल होंगे, 25% सफ़रर होंगे और 50% कैरियर होंगे। नाउ सी ए एस मतलब कैरियर, और यह क्या है, वो सफ़रर है, कैरियर है या तो सफ़रर है। उसकी क्रॉसिंग, अगर उसकी शादी एक वुमेन से होती है, एक सफ़रर है और एक क्या है, ए एस मतलब सफ़रर, और यहाँ पे ये डबल एस क्या शो कर रहा है कि उसको हुआ है, ये कैरियर है ए एस, और ये सफ़रर है। अगर कैरियर और सफ़रर की जो है दोनों साथ में आते, मेल और फीमेल, तो 50% ऑफ द प्रोजेनी कैरियर एंड 50% विल बी सफ़रर। तो 50% चांसेस किसके हैं, प्रोजेनी के जो कैरियर होंगे, 50% क्या है, सफ़रर होंगे। और अगर सफ़रर है, वो पर्सन सफ़रर है और फीमेल कैरियर है, तो इस तरह के क्या है, आउटकम आने के चांसेस होंगे। नाउ लास्ट वन, दोनों सफ़रर है, तो ऑल प्रोजेनी विल बी सफ़रर, बोथ पेरेंट आर द sufferer. Okay, so that's why the person which suffering from the sickle cell should avoid the marriage. Okay, उसको शादी से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। Now remedies. Now see the figure 16.13, hand of the child with the sickle cell anemia। देखो ये बच्चे को जिसका हैंड्स का पिक्चर दिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ, तो पूरा का पूरा क्या है, उसके फिंगर
स्वेल्ड है, फुगे हुए दिखाई दे रहे हैं। डायग्नोसिस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम, the solubility test for the diagnosis of the sickle cell anemia is available at all the district hospital. Similarly, the confirmatory diagnosis test electrophoresis is performed at a rural and the sub-district hospitals. जो इसके लिए कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है सिकल सेल एनीमिया के लिए वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। एंड इसका जो टेस्ट है उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ रेमेडीज, दिस डिजीज इज स्प्रेड इन ओनली वन वे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ये जो बीमारी है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही तरीके से फैलती है। वो क्या है, कौन सा मेथड है वो? रिप्रोडक्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है, फैलता है। हैंस हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर चाइल्ड एग्जामिन आइदर बिफोर मैरी और आफ्टर इट। तो इसलिए जो हस्बैंड और वाइफ है उनको अपना ब्लड क्या करना चाहिए, एग्जामिन कराना चाहिए, चेक करना चाहिए, बिफोर मैरी और आफ्टर इट, या तो शादी के पहले और शादी के बाद। ऐसा क्यों होना चाहिए? बिकॉज कि अगर हमने पहले ही उसमें ब्लड ब्लड को क्या किया, हमने एग्ज़ामिन किया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या जो ब्लड है वो सिकल सेल एनीमिया से इफ़ेक्टेड है या नहीं है। अगर है तो उसका इलाज करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, हम यंग वंस को बर्थ देने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली। अदरवाइज़ क्या है, और बाद में करना चाहिए आफ्टर द मैरिज, सो दैट क्या हो, जो यंग वंस है उसके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। उसके पहले ही सिकल सेल जो डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट करके तभी हम लोगों को यंग वंस को बर्थ देने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो दैट्स वाई ब्लड एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ए कैरियर और सफरर शुड अवॉइड मैरिज विद द अनदर कैरियर और सफरर। अगर कोई पर्सन सिकल सेल एनीमिया का सफ़रर है तो उसको क्या करना चाहिए, मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, शादी को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो कैरियर हो या सफ़रर हो। ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया शुड टेक ए टेबल ऑफ द फॉलिक एसिड डेली। और जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड होता है उसको एक टेबलेट फॉलिक एसिड का डेली लेना चाहिए। Now mitochondrial disorder. Now sixth one is the mitochondrial disorder. Okay, so mitochondrial disorder means the disorder in the mitochondria, and we know that the mitochondria is the powerhouse of the our cell. Mitochondria DNA may also becomes defective due to the mutation during fertilization. Mitochondria are contributed by the egg cell. Mitochondrial DNA may also become defective due to mutation. During fertilization, mitochondria are contributed by the egg cell alone. Hence, mitochondrial disorders are inherited from mother only. The mitochondrial disorders are inherited from the mother only. The Leber hereditary optic neuropathy is an example of the mitochondrial disorder. जो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है वो मदर से यंग वंस में ट्रांसफ़र होती है। डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स, कई सारे जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स। एंड पॉलीजेनिक डिसऑर्डर यू कैन से। समटाइम डिसऑर्डर अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन। In most such disorder, their severity increases due to effect of the environmental factor on the fetus. Common example of such disorder are the cleft lip, cleft plate. अब इस तरह का जो एग्जाम्पल है जो मल्टीपल जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है वो यस क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट। जो क्लेफ्ट लिप लिप जो होती है ओंठ, फटे हुए ओंठ होते हैं। ओके, तो इस तरह की जो बीमारियां होती, तो अगर फटे हुए ओंठ होते तो हमारे टीथ क्या होते, दिखाई देते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट जैसी डिसऑर्डर ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स की वजह से होते। कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक, सिकुड़ा हुआ पेट, स्पाइना बाइफिदा, स्पाइना बाइफिडा, ये स्पाइना बाइफिडा इज रिलेटेड टू
डिफेक्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रॉब्लम होती है। बिसाइड्स डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, अस्थमा, ओबेसिटी आर अल्सो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। अब ये जो बीमारियां हैं, कॉमन बीमारियां जो सभी को हो रही है आफ्टर द 30-40 एज में, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ का, अस्थमा, ओबेसिटी are also the polygenic disorder. Polygenic disorder do not strictly follow Mendel's principles of heredity. This disorder arise from complex interaction between the environment, lifestyle and defect in the several gene. अब ये जो है स्ट्रिक्टली मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को फॉलो नहीं करते, ये बीमारियां एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस की वजह से, लाइफ स्टाइल में होने वाली चेंजेस की वजह से और सेवरल इस डिफेक्ट जिन में होने की वजह से ये अराइज होते हैं, मतलब ये जनरेट होते हैं उसकी वजह से। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल। नाउ द ऑब्जर्व द फिगर, see the figure, these persons are get affected due to the माउथ कैंसर, yes they are affected फ्रॉम द माउथ कैंसर। ये जो दिख रहा है इसमें माउथ कैंसर से, देखो यहाँ पे माउथ कैंसर की वजह से जो उनका माउथ है किस तरह से डैमेज हो गया है कि वो खाना तक नहीं खा सकते, इनको च्यू नहीं कर सकते। ओके, और ये किसकी वजह से होता है? ज़्यादातर जो गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, उसके यूज़ से ये होता है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टोबैको एडिक्शन एंड कैंसर। अब जो है कैंसर, जो माउथ कैंसर स्पेशली, वो टोबैको के एडिक्शन से, जो टोबैको खाने की जो आदत है, लत है, वो उससे कैसे रिलेटेड है। अभी हम 100% क्या है ये नहीं बोल सकते कि दोज हु आर चीविंग द टोबैको ऑल विल सफ़र फ्रॉम द कैंसर, बट देयर आर द मोर चांसेस that person may have the mouth cancer because of the chewing of tobacco. Many people consume tobacco either by smoking or by chewing. बहुत सारे लोग टोबैको को कंज्यूम करते हैं। अब ये कंज्यूम करने का मेथड भी क्या है? 2 डिफरेंट मेथड्स है, आइदर बाय च्यूइंग और आइदर बाय स्मोकिंग। अब ये 2 तरीके से कंज्यूम करने का जो तरीका है वो क्या है? स्मोकिंग करना, और दूसरा क्या है? उसको च्यू करना, उसको चबाना। जैसे कि जो है सिगरेट, बीड़ी जो क्या करते हैं, पीते हैं, तो वो क्या रहता है? वो टोबैको का कंजम्पशन है, उसके जो उसका धुआं निकलता है, वो धुआं जो है वो कंज्यूम करते हैं, और दूसरे जो वो डायरेक्ट माउथ में रख के उसको च्यू करते हैं। तो कंजम्पशन of the tobacco in any form can cause the cancer. Smoking of cigarette and बीड़ी adversely affect the process of digestion. जो सिगरेट और बीड़ी का जो स्मोकिंग है उसकी वजह से भी कैंसर एज वेल एज डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। इट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट एंड कफ। तो इसकी वजह से जो गले में क्या होती है? कफ की प्रॉब्लम अराइज होती है और बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेसिव स्मोकिंग कॉजेज इंस्टेबिलिटी एंड ट्रेमलिंग ऑफ द फिंगर्स। जो लगातार स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके अंगुलियों में ये क्या होती है? ट्रेमलिंग होती है, वो इसलिए होल्डिंग एबिलिटी उनकी थोड़ी वीक हो जाती है। ड्राई कफ कॉज द स्लीपनेस, ड्राई कफ कॉज द स्लीपलेसनेस। टोबैको कंजम्पशंस कैन आल्सो लीड टू द शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन। और जो टोबैको कंजम्पशन की वजह से क्या होती है? जो लाइफ स्पैन होती है वो शॉर्ट हो जाती, छोटी हो जाती है। क्रोनिक ब्रांकाइटिस एंड pericarditis, cancer of the lung, mouth, larynx, pharynx, pancreas, etc. occurs. Harmful effect of the smoking are due to the nicotine present in the tobacco. जो टोबैको के अंदर निकोटीन प्रेजेंट रहता है वही हार्मफुली क्या है? ये एलिमेंट होता है, फैक्टर होता है स्मोकिंग करने के टाइम। इट अफेक्ट द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ये टोबैको च्यूइंग हो या इसकी स्मोकिंग हो वो हमारे नर्वस एज वेल एज पेरिफेरल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आर्टरीज बिकम हार्ड। जो आर्टरीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। दैट इज कॉजेज द आर्टियो
arteriosclerosis and hypertension. Tobacco smoke contain the harmful chemicals like pyridine. अब जो ये टोबैको स्मोकिंग जो करते हैं उस टोबैको के अंदर हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल पिरिडीन, अमोनिया, एल्डिहाइड, फरफ्यूरॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड etc. They cause uncontrolled cell division. Tobacco smoke is the full of the minute carbon particle. Tobacco smoke is the full of the minute carbon particle which causes normal tissue of the lung ट्रांसफॉर्म इनटू द थिकेंड ब्लैक टिश्यू। जो टोबैको स्मोक करते हैं उस वो क्या है, कार्बन पार्टिकल, छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एंड दे गेट डिपॉजिटेड on the lungs and lungs functions get affected because of that covering of the is black colored carbon. This causes cancer. While chewing tobacco or tobacco product, much of the extract is absorbed into the body. जब उसको च्यू करते तो क्या हो जाता है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशंस में कॉज कैंसर ऑफ द लिप्स और टंग। जो टोबैको का कंजम्पशंस है वो जो टंग्स है और लिप्स है उसके अंदर ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। विजुअल डिसऑर्डर्स और ट्रेमर्स और विजुअल डिसऑर्डर जो हमारे विजन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स और ट्रेमर से रिलेटेड डिसऑर्डर भी इसकी वजह से क्रिएट होता है। टू प्रोटेक्ट वंस बॉडी फ्रॉम कैंसर वन मस्ट अवॉइड स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट इन एनी फॉर्म। हर एक को अपनी बॉडी को बचाने के लिए कैंसर से अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग को और टोबैको के च्यूइंग को। So that's why to create the awareness, the government has forced to the tobacco product making companies to print the yes big size of pictures of the yes tobacco that tobacco caused कैंसर्ड। ओके, जो टोबैको से कैंसर्ड हुआ है ऐसे पर्सन के फोटोज़ को उन्होंने क्या किया है, फोर्स किया सो दैट द पर्सन become aware that cause the cancer. So you will see that packet of the cigarette, bidis and tobacco, they have the picture of the persons is and affected with the mouth cancers or lip cancer or tongue cancers, and they unable to chew the food, so they are given the liquid food through the pipe and थ्रू द नोज़। तो उनको क्या करना पड़ता है, जिसको माउथ कैंसर हो जाता है टंग में या लिप्स में, तो उनको नाक से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही दिया जाता है, वो कोई भी सॉलिड थिंग्स खा नहीं सकते, इतना ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो दैट्स वाई स्टूडेंट वी शुड नॉट अवॉइड वी शुड नॉट यूज सच प्रोडक्ट्स which causes the cancer, and we should aware our relatives, our neighbors, our family to avoid the use of the tobacco, to avoid smoking because they causes the is very severe problems. Okay student, now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me. Yes student, do you have any problem? Do you have any problem? Do you have any doubts? No. Okay. Now yes, I am ending the meeting.